the starting point. Number 2 point is hotels are anti-cyclical investment. आपको invest तब करना चाहिए जब market down हो, and you're not entering at the top of the cycle because already the returns are very narrow. Number 3, हमारा change in business model है. We have gone very strongly into asset light growth. तो पिछले almost 4 साल में हमने 70 new contracts add किए, which is a bit around like 16 hotels a year, जो हमने 15 तक बोला था. So let's say we have averaged more than 16, and in one of the years we even went up to 27 contracts in 1 year. So all these contracts, with the exception of 3 contracts, are all on an asset light model. Asset light model means fee-based business pay. और इसमें जो investors हैं, they take the real estate risk, we take the management risk. Management में given the history of our company, जिसके 120 AGM हो चुके हैं, जिसका पहला होटल 1903 में खुला था, we feel very confident that we have overcome so many crises. तो कोविड में भी हमने सोचा this too shall pass, but our contracts are at least 15 to 20 years. अगर हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी जो टर्म है कम से कम 15 साल होती है, और हम कोशिश करते हैं कि लंबी से लंबी हो. तो इसलिए आई थिंक we were able to follow through with our strategy. Number 4, and the last important point, zigzag strategy does not work. Crisis कोविड का आया था, आने वाले कुछ सालों में कोई और क्राइसिस आएगा, 10 साल बाद फिर कोई और क्राइसिस आएगा. क्राइसिस keep coming and going. The job of the management is to navigate through the crisis and not change the mid to long term strategy. And growth जो है एक किसी भी कंपनी के लिए is a part of the mid and long term strategy, because अगर आप growing company है तो आपकी सिर्फ top line और profitability नहीं बढ़ती, आपके जो employees हैं, जो आपके जो साथी हैं, उनको एक growth का chance मिलता है. वो भी नई नई चीजें सीखते हैं, उनकी पोजीशन बढ़ती है, उनकी इनकम बढ़ती है, कंट्रीब्यूशन एट अ नेशनल लेवल जीडीपी में बढ़ती है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस ग्रोथ, एंड इट इज वेरी हेल्दी फॉर एनी कंपनी एंड डेफिनेटली आल्सो फॉर इंडियन होटल्स. पुनीत जी, इंडियन होटल्स के 3 पेन पॉइंट्स थे. एक तो आपके ग्लोबल बिजनेसेस जहां आपने अक्वायर करे थे, उन पे अपडेट क्या है. दूसरा पेन पॉइंट था सी रॉक, जो आपकी बॉम्बे में एक आपने एक्विजिशन करी थी, उस पे अपडेट क्या है. तीसरा ताज मानसिंह, जो दिल्ली में आपका बड़ा होटल है. इन तीनों पेन पॉइंट्स पे क्या अपडेट है? देखिए, 3 जो पेन पॉइंट्स हैं उसमें जो आपने जो पहले वाला बोला ग्लोबल, उसमें मेनली इंटरनेशनल जो हमने एक्विजिशन ऑफ एसेट्स की थी, उसमें पेन पॉइंट था. तो उसमें मोर और लेस हमने सॉल्व कर दिया कि ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर वेयर वी हैव सम ओनरशिप पोजीशन, तो उसका हम ये कह सकते हैं द टोटल सम ऑफ द पार्ट्स इज अ पॉजिटिव नंबर फॉर अस, adjusted for COVID. That means London plus New York plus San Francisco plus if we want to add Cape Town, that is positive. Maldives is actually a beneficiary of COVID, so it has done better than we expected. दुबई जो है उसमें हमारे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 2 होटल्स, और एक तीसरा खुलने वाला है जनवरी में. श्रीलंका में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है कोविड के टाइम, but it was never a pain point before COVID. It's only during COVID that Sri Lanka became a pain point. Others like in Bhutan, Nepal, Malaysia, again management contracts very positive, तो उसमें तो इतना प्रॉब्लम था नहीं. हमने कुछ चेंजेस किए हैं ड्यूरिंग कोविड. हमने अपना न्यूयॉर्क का कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किया है, तो आई थिंक इवन देयर वी विल बी ऑन अ बेटर विकेट पोस्ट कोविड ऑन आवर इंटरनेशनल फ्रंट. Our second one, which was a very tough battle, but that was, once we write the history on the company, the turning point in the life cycle of the company was retaining Mansingh. क्योंकि Mansingh को, जो ताज मानसिंह या ताजमहल दिल्ली को जो हम रिटेन कर सके थे और हमको काफी लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, that gave a confidence internally to the staff, but also to the investor community. And that is how we were able to sign almost,
90% of the 70 agreements जो हमने पिछले 4 साल में किए वो नहीं होते अगर had we lost Mansingh. So we can't take the calculation of Mansingh only as a standalone. Finally, CROC, I think CROC, this is the year, this financial year is the year for laying the foundation on the CROC property. And we are in negotiation and discussion, government, state government के साथ to make the next iconic asset for the city of Mumbai. जैसे जमशेदजी टाटा ने 1903 में कोलाबा साइड में किया था, this is an opportunity to do that together with Lands End. तो वो अकेले करना मुश्किल है because we need to tie the infrastructure with such a large development. And we have had good negotiation. जो भी हमारी बातचीत चल रही है BMC से, state से, tourism minister से, is very positive. And we will take it also up. We'll taking it up with the urban development secretary soon. So I think इसमें we are very excited कि आस्ते-आस्ते, but इसको step by step करना है, as it is going to be a next landmark, not for Indian Hotels but also for the city of Mumbai. And थोड़ा बहुत हम optimistic हैं कि आने वाले 12 से 18 महीने में इसको हम solve करेंगे. But in order to do so, at the end of the year, और हमने communicate भी किया है market में, we are going to acquire 100% shareholding of CROC. So people are dealing directly with us and not with another partner or anybody else. So it is just direct relationship with us and direct development through us. And we remain confident कि ये property की development आने वाले 12-18 महीने में शुरू हो जाएगी. I would like to add यहाँ पे एक और property which is very significant. We are building a flagship Ginger in Santa Cruz, जहाँ पे हमारा पुराना flight kitchen था. तो on the main access to the airport on the main road, almost 400 कमरे का Ginger branded property, जो अब basement works complete हो चुके हैं, अब आस्ते-आस्ते ground floor शुरू हो रहा है. ये अगले साल November-December तक complete हो जाएगी. And we are very excited because this will reposition the Ginger brand completely. और जो इसकी जो visibility है, इसकी जो presence है in the commercial capital of India will give a real boost to our brand. तो पुनीत जी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, कैश फ्लोज आपके ठीक हो रहे हैं, डिमांड वापस आ चुकी है, तो आप एक राइट इशू क्यों कर रहे हैं? बिकॉज राइट इशू में डाइल्यूशन होगा. राइट इशू का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपको भी और पैसे की ज़रूरत है. मगर इफ डिमांड इज बैक, व्हाई आर यू डूइंग अ राइट इशू? देखिए, डेट लेवल्स कम तो हुए थे, बट कोविड के टाइम में थोड़े बढ़े. बट मोर इम्पोर्टेंट इज टू गेट द राइट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी. एंड इसलिए जो भी बोर्ड की जो गाइडेंस मिली है और आगे भी मिलेगी, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कितना राइट्स इशू का साइज होना चाहिए, क्या करना है, कितने लेवल पे आपको डेट को लेके आना है. इज द लॉन्ग टर्म एम्बिशन टू नॉट हैव डेट एट ऑल? इज द लॉन्ग टर्म एम्बिशन टू हैव अ शॉर्ट लेवल ऑफ डेट? ये तो सब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा. तो देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन आपके चैनल पे आपके साथ शेयर करने के लिए. ये थे पुनीत चथवाल, इंडियन होटल्स के एमडी एंड सीईओ. निकुंज से बात कर रहे थे. एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बाहर आई. एक तो राइट्स इशू की यूटिलाइजेशन की बात की, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी पे फोकस करते हुए उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली एक्सपेंशन करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ में और एक एसेट लाइट मॉडल परसू करेंगे. और इसीलिए शायद बाजार को ये कमेंट्री पसंद आई है. 4.5% ऊपर है स्टॉक, 35% लास्ट एक महीने में चल चुका है. टाइम फॉर अ ब्रेक. ईटी नाउ स्वदेश पे ब्रेक के बाद हम स्पॉटलाइट डालेंगे स्टार्टअप यूनिवर्स या न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स जो कुछ लिस्ट हो गए हैं, कुछ के आईपीओ आने वाले हैं. और ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक हम एक ऐसे ही बड़े बाजार के दिग्गज से बात करेंगे जो न्यू इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स के बारे में हमारे साथ एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे.
Banking partner Fincare Small Finance Bank. Wish more, get more.